بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق سٹوریز کے ناظرین کے لیے ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ وہ 25 سال کا پرکشش لڑکا تھا جس کی رنگت گوری اور قد کاٹ متوسط تھا۔ روشن پیشانی کے اوپر ہلکا سا محراب تھا جو اکثر لمبے سیاہ بالوں کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں اکثر و بیشتر لالی رہتی۔ اس لڑکے نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے بزنس کلاس کے دوسرے مسافروں پر واجبی سی نگاہ ڈالی، جن میں سے کافی سارے لنچ کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھے۔ اس جہاز نے لندن کے ہیتھروے ایئرپورٹ سے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری تھی۔ وہ لڑکا واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو بیٹھنے سے پہلے اس نے پھر سے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کو بغور دیکھا۔ اس خاتون کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ نوجوان سونا چاہتا تھا پر اسے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کی لائٹ سے الجھن ہو رہی تھی۔ پائلٹ نے مسافروں کے آرام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روٹین میں جلنے والی کافی ساری لائٹس آف کر دی تھی۔ خاتون نے ناول کے اگلے صفحے کو بڑے سلیقے سے پلٹا۔ لڑکی کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی جس کا اندازہ خاتون کو ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بے چینی بھی اس نے بانپ لی تھی۔ خاتون نے لائٹ آف کرنے کے بعد نوجوان کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی رائے دی تھی۔ کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ نوجوان نے بھی خاتون کی طرف بغور دیکھ کر جواب دیا۔ خاتون کے ہونٹوں پر نوجوان کی بات سن کر پھر سے ہلکا سا تبسم آیا تھا۔ بھائی میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی۔ خیر آپ آرام کرو۔ خاتون نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے لگی۔ ناول اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے پچھلے 6 گھنٹوں کی مسافت کے دوران ان دونوں نے تعارفی مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہائے ہیلو سلام دعا تھینکس اور شکریہ ہی ایک دوسرے سے کہا تھا۔ خاتون کی گود میں پڑے ہوئے ناول نے ایک دفعہ پھر سے نوجوان کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ آپ بھی اسی طرح کے ناولز پڑھتی ہیں؟ نوجوان نے سونے کی بجائے سوال پوچھ لیا۔ خاتون اس کی آواز پر چونکی اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کس طرح کے مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اب کی بار خاتون کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈائجسٹو میں قسط وار چھپنے والے ناولز جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف وقت کا ضیاع۔ نوجوان نے دو ٹوک خود ہی تبصرہ کر دیا۔ آپ نہیں پڑھتے ایسے بے مقصد ناولز؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے پوچھا ہی تھا۔ نوجوان نے ہلکا سا کہکا لگا دیا۔ وہ اور زور سے ہنستا اگر دوسرے مسافروں کی نیند کا خیال نہ ہوتا۔ ایک بات تھی، وہ دونوں دھیمے سروں میں اپنی بات کر رہے تھے۔ بازلہ آپ کی شریک حیات ہے؟ خاتون نے ہولے سے پوچھا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی، نوجوان نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بہن ہے، خاتون نے اندازہ لگایا۔ نوجوان نے نفسی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، بہن تو نہیں ہے، ہاں بہن جیسی ضرور ہے۔ خاتون نے سنا تو ہلکا سا مسکرائی، پھر سے ٹیک لگائی اور اوپر دیکھنے لگی۔ لڑکے نے حجاب کے باوجود اس کی دبدبی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ آپ میری بات پر مسکرائی کیوں؟ نوجوان نے کچھ خفگی سے پوچھا۔ گہری نظر ہے آپ کی، پردے کے پیچھے والی مسکراہٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ لڑکے کے روکھے لہجے پر خاتون نے اسے دیکھا، پھر سن پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی رشتہ جیسا جیسی کی بیساکھیوں کے سہارے نہیں چل سکتے۔ بہن صرف اور صرف بہن ہوتی ہے، بہن جیسی نہیں ہوتی۔
हम अक्सर कहते हैं ये मेरी बहन जैसी है, वो ख़तून मेरी माँ जैसी है, आप मेरे बाप जैसे हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कभी कोई मर्द ये नहीं कहता कि मैं उस ख़तून को अपनी बीवी जैसा ही समझता हूँ। आपने कभी भी किसी ख़तून के मुँह से ये नहीं सुना होगा कि मैं उस मर्द को अपने शौहर जैसा ही समझती हूँ। अब आपने तय करना है कि बादला आपकी बहन है या नहीं, जैसी को बीच में से निकाल दो। वैसे तो मैं जल्द हार नहीं मानता, बहुत ज़िद्दी हूँ, पर आपकी बात दिल को लगी। मैं इकरार करता हूँ बादला मेरी बहन है। दोनों के होंठों ने मुस्कुराहट का मज़ा लूटा। वो लड़का इस सारी गुफ्तगू के दौरान पहली बार मुस्कुराया था। आप तो फ़ौरन रिश्ता बना लेती हैं। आप कब से मुझे भाई कह रही हैं? भाई मुझे कहाँ आते हैं रिश्ते बनाने। खतून ने अपनी गोद पर पड़े हुए नावल पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वो कोई मुकद्दस चीज़ हो। उस इसके बाद खतून ने अपने पहलू में पड़े हुए हैंडबैग में वो नावल रख। लड़के ने इस सारे अमल को बड़े गौर से देखा तो दिल की बात जुबान पर ले आया। लगता है आपको इस नावल से खास लगाव है। खतून ने बगैर तामल के कहा। कोई ख़ास वजह? ये मेरी ही कहानी है। खतून ने नज़रें झुकाए ही कह दिया। बाज़ला की भी इस नावल को पढ़ने के बाद आप जैसी ही राय थी। कहने लगी, भाई ये नावल पढ़कर मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी ही कहानी हो। निमल हैदर उसकी पसंदीदा राइटर है। बाज़ला के पास इस राइटर के सारे नावल मौजूद हैं। लड़का बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बाज़ला की बातें खतून को सुना रहा था। हालाँकि वो चर्ब ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं था। निमल हैदर आपकी बहन बादला की तो पसंदीदा राइटर है और आपकी। खतून ने इश्तियाक से पूछा। बिज़नेसमैन हूँ, शेरो शायरी और अदब से बिल्कुल लगाव नहीं है। किताबें पढ़ता ज़रूर हूँ मगर ये फ़ज़ूल किस्म की नहीं। उर्दू अदब और शेरो शायरी को आप फ़ज़ूल समझते हैं। यस, हमारा सारा अदब सिर्फ 2 लफ्ज़ों के गिर्द घूमता है, मोहब्बत और इश्क। जहाँ तक शायरी की बात है, वो हिजर और दर्द के सहारे चल रही हैं। दूसरे राइटर्स की अभी बात नहीं करते, आप निमल हैदर को ही ले लें। सारे के सारे नावल मोहब्बत पर ही लिख डाले। खतून गौर से लड़के की बातें सुन रही थी। आप निमल हैदर के खिलाफ हैं या मोहब्बत के? खतून ने शाइस्तगी से पूछा। दोनों के। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज़्यादा धोखा दिया जाता है। लड़के ने तल्ख़ी से जवाब दिया। ख़तून उसके जज़्बातीपन से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। मोहब्बत की मुखालफत तो समझ आ गई। आपके बकौल मोहब्बत धोखे का सबब बनती है। निमल हैदर के क्यों खिलाफ हो? खतून ने बड़े मज़े से पूछा। वो ख़याली किरदार तख्लीक करके मोहब्बत की वकालत करती रहती है। लड़के ने किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह जवाब दिया। निमल हैदर ने सिर्फ़ वो किरदार तख्लीक किए हैं जो हमारे इर्द-गिर्द माशरे में मौजूद हैं। वो किरदारों को सोचती नहीं बल्कि देखती है। जो उसे दिखाई देता है वो वैसे ही लिख देती है। खतून ने यकीन कामिल से कहा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप निमल हैदर को जानते हैं। मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। वही नावल है ना जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे की खातिर जान दे देते थे। जी हाँ, इम्पॉसिबल उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, हाँ, याद आया अक्ल सलीम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ये बात मेरी समझ से तो बाहिर है। लड़का जज़्बाती अंदाज में बोला। जो समझ में आ जाए वो बात कहलाती है, जो ना आए उसे मोहब्बत कहते हैं। खतून ने किसी दानश्वर की तरह जवाब दिया। वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद दोबारा गोया हुई। माफ़ कीजिएगा, आपकी निम्ल हैदर खुद भी एक करैक्टर ही हैं। लड़के ने फिर से अपनी राय दी। वो कैसे? खतून ने उजलत में पूछा। देखें ना, सोशल मीडिया के दौर में इतनी टीवी पर नहीं आती कोई तस्वीर नहीं है उसकी। बाज़ला बेचारी गूगल पर सर्च करती रहती है, वो उसकी निजी ज़िंदगी है, जैसे चाहे गुज़ारे। खतून ने संजीदगी से जवाब दिया। खतून ने संजीदगी से जवाब दिया। वो तन से मुस्कुरा दिया। मोहब्बत पर लिखने वाली मोहब्बत को नहीं समझती। उसे चाहिए लोगों से मिले, लोग
उसे टीवी पर देखना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं, उसके साथ तस्वीरें बनवाना चाहते हैं। लोग मोहब्बत करते हैं उससे। मोहब्बत में देखने की शर्त नहीं होती। वो अपने चाहने वालों से जो कहना चाहती है, अपने नावलों में भी लिख देती है। ये मोहब्बत की एक अलग और मुख्तलिफ सूरत है। मोहब्बत, मोहब्बत, मुझे नफ़रत है मोहब्बत से। लड़का दाँत पीसते हुए बोला। उसने अपने दिल का गुबार निकाल दिया था। खतून ने शिगफ़्तगी से उसके शाने पर अपना हाथ रखा और शाइस्तगी से कहने लगी, देखो भाई, मोहब्बत से इतनी नफ़रत मत करो। जो इसके जितना खिलाफ होता है, ये उसके उतने ही तवाफ़ करवाती है अपने हुज़ूर। खतून ने नसीहत की तर्ज पर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। लड़के ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ पल दोनों अतराफ खामोशी रही। हम बगैर तारुफ के घंटा भर से बातें किए जा रहे हैं। मैं मुजम्मिल यंग एक्सपोर्टर हूँ, लेदर गुड्स और ट्रैक सूट की। फ्रांस, जर्मनी और यूके के एक्सपोर्ट करता हूँ। लाहौर में 2 फैक्ट्रियाँ हैं। मैं निमल हैदर राइटर हूँ, कई नावल लिख चुकी हूँ। निमल ने मुजम्मल के अंदाज में ही खुद का तारुफ करवा दिया। मुजम्मल बेग हैरत में मुब्तला था। वो घंटे भर से जिस खतून की मुखालफत कर रहा है, वो इसी के साथ ही बैठी थी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मेरा मतलब वो, मुजम्मल बेग ने रुक-रुक कर कहा। देखो भाई, आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। अब मेरी सुनो। आपने कहा था कि किसी के मज़ाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुत्तमईन और पुरसकून हूँ। अगर तबीयत में मोहब्बत हो तो सुकून चेहरे से ही नज़र आ जाता है। उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने ये भी कहा था कि निमल हैदर करैक्टर है। मेरा मानना है कि हर राइटर पहले खुद एक करैक्टर होता है, तभी तो वो माशरे में बिखरे किरदारों को जल्द पहचान लेता है, क्योंकि वो उसके कबीले ही से होते हैं। मैंने आपको भी पहचान लिया, आप भी करैक्टर हैं। आपकी कहानी यकीनन बहुत अलग और मुख्तलिफ होगी, पर अभी अधूरी है। आप मोहब्बत और नफ़रत की वादियों के दरमियान खुद को खोज रहे हैं। जब आप मोहब्बत की मंज़िल पालोगे तो मुझे फ़ोन करना, तब मैं आप पर भी नावल लिखूँगी। मेरे नावल मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है के किरदारों पर भी आपको एतराज़ था। आपके ख़्याल में वो किरदार ख़याली हैं, हकीकत में ऐसा थोड़ी होता है। रिफ़त और रमीज़ को मैंने खुद अपनी आँखों से देखकर लिखा था। सिर्फ़ उनके नाम तब्दील किए थे, बाकी सब कुछ हकीकत ही था। निमल हैदर ने बड़े सलीके से बात की थी। मुज़म्मल बेग ने उसकी बात को पूरी तवज्जो से सुना। निमल हैदर ने अपने हैंडबैग से अपना लेडीज़ वॉलेट निकाला। उसमें से अपना विज़िटिंग कार्ड निकाल कर मुज़म्मल बेग को थमा दिया, जो उसने चुपचाप ही थाम लिया। निमल हैदर सलीके से फिर बोल पड़ी। मैं आपको डाइजेस्टिव में छपने वाले दर्जनों नॉवेल्स के नाम बता सकती हूँ, जिनको पढ़कर हज़ारों अफ़राद की ज़िंदगियों में तब्दीली आई है। जिस तहरीर को पढ़कर भटके हुए रास्ते पर आ जाएँ, उसे वक़्त का ज़िया कहना नाइंसाफ़ी होगी। आपने ये भी कहा था कि निमल हैदर मोहब्बत की वकालत करती हैं। मुज़म्मल भाई, मैं कौन होती हूँ मोहब्बत की वकालत करने वाली? मोहब्बत तो खुद ही वकील है, और जिसकी वकील खुद मोहब्बत हो, वो खुद में खुद कफ़ील हो जाता है। निमल हैदर ने फ़साहत से सारी बात की थी। उस वक़्त मुज़म्मल के रुख़ रोशन पर कई सारी उलझनों का बसेरा था। वो ज़हनी तौर पर उस वक़्त मोहब्बत और नफ़रत की दरमियानी ख़लीज पर खड़ा था। निमल हैदर ने उसके चेहरे के तासुरात देखे तो मुस्कुराई और मीठी आवाज़ में कहने लगी, मुज़म्मल भाई, आख़िरी बात, माँ का ज़िक्र होते ही आपके चेहरे के ख़दो-ख़ाल तब्दील हो गए थे। ऐसा क्यों? मैं ये तो नहीं पूछूँगी कि आपका निजी मामला है। चंद दिन पहले एक नए राइटर का नावल पढ़ने का मौका मिला। उसने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी थी, माँ जैसी भी हो जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देती है।
हसीन अत्फाक है आपका नाम, मीम से शुरू होता है। माँ और मोहब्बत भी मीम से ही हैं। मुझसे एक दफ़ा एक फ़ैन ने ईमेल के ज़रिए पूछा, "निमल आपकी मोहब्बत का मतलब तो बताएँ?" मैं चंद दिन सोचती रही, फिर मुझे जवाब मिल गया। मोहब्बत का मतलब है माँ और माँ का मतलब है मोहब्बत। इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। हिफाज़ती बेल्ट बाँध लीजिए और कुर्सी की पुश्त भी सीधी कर लें। एयर होस्टल ने निमर हैदर की हिकमत से भरी बातों का सिलसिला तोड़ा था। जहाज़ की लैंडिंग के बाद मुज़म्मिल ने निमल हैदर का हैंडी कैरी कैबिन से निकाल कर उसके हवाले किया था। निमल हैदर ने मशकूर निगाहों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगी, "मुज़म्मिल भाई, कोई बात नागवार गुज़री हो तो माज़रत ख़्वाह हूँ।"